Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss an American playwright, Edward Albee, who was born on 12 March 1928 and was died on 16 September 2016. We are going to discuss his one of the famous play, Who's Afraid of Virginia Woolf, which was premiered on October 13, 1962. Edward Albee, American dramatist and theatrical producer. When Edward was 2 weeks old, he was adopted by millionaire couple Reed and Frances Albee. Young Edward was raised by his adoptive parents in Westchester, New York. Albee was exposed to theatre throughout his childhood. Before starting the play, we should know some of the key facts. Who's Afraid of Virginia Woolf? So, this play is about an imperfect marriage. It is 3-act play. This play is neither a sad nor funny play as it contains elements of both comedy and tragedy. Who is Afraid of Virginia Woolf won the Tony Award in 1963 and New York Drama Critics Circle Award in 1962 and 63 for Best Play. Basically, in this play, there are two major couples, George and Martha, and Nick and Honey. Play opens at a campus of a small New England university. The play opens with the main characters, George and Martha, coming from a party. George was the professor at the university and Martha was the daughter of the president of the same university, New Carthage University. George and Martha fought all the time. Their married life turned into a battle. It seems that they were not a happy couple in the world. After some time, Martha informs George that a couple, Nick and Honey, are coming to their house. Now the doorbell chimes and Nick and Honey arrive. They are discussing about each other's life and it moves to extreme physical and mental suffering discussion. They all join and set for alcohol. So यहाँ तक की बात से आप ये समझ सकते हो कि जो ये प्ले है एक न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में एक स्मॉल कैंपस है वहाँ से स्टार्ट हुआ है जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं जॉर्ज एंड मार्था जो कि एक कपल तो है बट ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो लाइफ है वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है। वो एनी टाइम वो झगड़ा करते रहते हैं, किसी न किसी वजह से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहती है। और मार्था जिस यूनिवर्सिटी में जॉर्ज प्रोफेसर था उसी यूनिवर्सिटी में जो प्रेसिडेंट है उनकी बेटी रहती है। एंड मार्था थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से पार्टी करके, तो जब वो अपने घर में होते हैं तो मार्था उन्हें इन्फॉर्म करती है कि एक निक और हनी जो कपल है वो उनके घर पे आने वाले हैं। निक जो रहता है वो सेम यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के फैकल्टी होते हैं। और अब क्या होता है, डोरबेल चाइम्स मतलब डोरबेल बजती है और निक एंड हनी आते हैं। सो अब क्या होता है, चारों मिलके अपनी अपनी बातें एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, अपने पास्ट लाइफ के बारे में, अपनी बहुत सारी तरह की चीज़ें आपस में बात कर रहे थे। एंड वो लोग अब अल्कोहल भी पीना शुरू कर रहे थे। As you can see, there is always an argument between George and Martha. George irritates Martha about her age. He also makes a fun of Nick. So, we'll start the act 1. You can see Martha used to torture her husband physically and mentally. She was also doing flirt with his guest Nick in front of her husband and want to notice George.
सो यहाँ क्या पता चल रहा है, जो मार्था रहती है अपने घर आए हुए गेस्ट निक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और इवन वो कर भी रही थी। शी ट्राइड टू जेलस जॉर्ज, बट क्या होता है, जॉर्ज उसे ऐसा इग्नोर कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और इस बात से मार्था और ज्यादा इरिटेट। हनी वॉज ड्रंक सो मच एज शी यूज्ड टू गेट रन टू द बाथरूम फॉर वॉमिट। यहाँ पे क्या है, हनी जो है थोड़ी फिजिकली वो परेशान रहती है, वो फिजिकली किसी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो उसे बार बार वॉमिटिंग जैसी फील हो रही थी, तो उसे बार बार दौड़ के वॉशरूम बाथरूम की तरफ जाना पड़ रहा था। नेक्स्ट एक्ट 2, while Martha was helping Honey to get over her problem, she also shared her that she and George had a child who is 21 years old. When they back to room, Nick and George has a male bonding. After some times, Martha and Nick start dancing. Martha also humiliate George again and again in front of their guests. तो एक्ट 2 में क्या होता है, जब भी हनी को वॉमिटिंग जैसी जो फीलिंग होती है तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है, तो मार्था भी उसे लुक आफ्टर करने जाती है कि वो ठीक है या नहीं। और उसी दौरान मार्था उससे शेयर करती है कि उसका और जॉर्ज का एक बेटा है जो कि 21 साल का है और कहीं वो बाहर रहता है। और जब वो लोग फ्रेशन अप होके वापस आते हैं रूम में, तो वो देखते हैं निक और जॉर्ज अपने मेल टू मेल मैन टू मैन टॉक कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स मार्था एंड निक स्टार्ट डांसिंग, और क्योंकि मार्था बार बार अपने हस्बैंड जॉर्ज को इरिटेट और जेलस करने के लिए निक के क्लोज जा रही थी, इंटीमेट कुछ मोमेंट्स कर रही थी, और उसी दौरान वो दोनों डांस करना शुरू करते हैं। और उसी के साथ साथ मार्था अपने हस्बैंड जॉर्ज को ह्यूमिलिएट भी करते नजर आती है। और यहीं पे पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे के डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक दूसरे को बता रहे थे। वहीं पे निक बताता है कि एक बारी क्या हुआ था, उसे बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जो वाइफ अभी हनी है वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसी के डर के वजह से उसने उससे शादी कर ली। बट बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। George tells Nick a story about a drunken night out with some his school friends, one of whom had in his past accidentally killed both of his parents. तो जॉर्ज भी ऐसी ऐसी कुछ कहानियां सुना रहा था निक। Now George decide to play a new game, get the guess. So यहाँ पे क्या आप समझ पा रहे होगे कि जॉर्ज और मार्था जो थे वो बहुत ही थोड़ा अजीबोगरीब टाइप के कपल थे। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अज्यूम कर लेते थे, इल्यूजन्स में जीते थे। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने बताया कि वो उसको शेयर कर रही है कि उसका जो एक बेटा है जो कि 21 साल का है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल एक इल्यूजन है। नाउ जॉर्ज डिसाइड टू प्ले अ न्यू गेम, गेट द गेस्ट। हनी अगेन रन आउट फॉर वॉमिट। जैसे ही जॉर्ज ने सोचा कि अब वो लोग गेम खेलना शुरू करेंगे, हनी को फिर से वॉमिटिंग वाली फीलिंग होने लगी और उसे दौड़ के फिर से वॉशरूम की तरफ जाना पड़ा। एंड एट द एंड ऑफ द एक्ट मार्था लीव्स जॉर्ज एंड टेल हिम दैट शी एंड निक गोइंग टू हैव सम क्लोज मोमेंट्स। In Act 3, when Martha and Nick starts an intimate moment, things suddenly change between them and Martha treats Nick very harshly. So अब क्या हुआ, जब मार्था और निक एक इंटीमेट मोमेंट के लिए अपस्टेयर्स गए थे और उसी दौरान विद इन अ सेकेंड निक का जो थोड़ा मन था वो चेंज हो गया और इसी वजह से मार्था को बहुत गुस्सा आया और उसने निक को बहुत बुरा ट्रीट किया। And then George returns with a new game, Bring Up Baby. Now अब आप लोग फिर से देख सकते हो कि जॉर्ज ने अब एक नया गेम स्टार्ट करने को बोला है, Bring Up Baby. He forces Martha to begin talking about their son. George announces that a telegram came while Martha and Nick were in the bedroom. Their son is dead. Martha was totally angry and upset and tells George that he is not allowed to kill their son. नाउ अब क्या हो रहा है, जैसे कि वो लोग इल्यूजन में जी रहे हैं,
तो जॉर्ज ने बताया कि जब तुम और निक दोनों बेडरूम में थे उसी दौरान एक टेलीग्राम आया था जिसमें बताया गया था कि जो हमारा बेटा है अब वो मर चुका है। तो मार्था अब क्या करी, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी कि नहीं, तुम कोई नहीं हो मेरे बेटे को ऐसे मारने वाले। And after some time, his another game, an illusion that the two of them made up to bring some comfort to their desolate lives. एंड फिर उन लोगों ने एक गेम खेला कि शायद उन दोनों की जो लाइफ है इस तरह की, उसको वो शायद एक कंफर्ट जोन दे सके। एंड आफ्टर दैट निक एंड हनी टेक्स देयर लीव, और उसके बाद क्या हो जाता है, निक और हनी चले जाते हैं वापस। नाउ मार्था एंड जॉर्ज आर अलोन विथ नो मोर illusions. So that's it for this video lecture. Thank you everyone. Keep watching.